let's begin this session. Bismillahir Rahmanir Rahim. Like always, nahmaduhu nusalli wa nusallimu ala rasulihil kareem. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Beta, this is the chapter of biological molecules, and trust me on this that this is the most important chapter from the section of basic biology. Why am I saying that? Because simply this chapter is going to give you at least two MCQs in your MCQ paper, at least a 4 mark question in your theory paper, minimum 4 mark. In 2021 or 2022, we had a question of 7 mark from the chapter as well. But just as an average, let's take it 4. And this chapter is going to be a really important chapter in your ATP component as well. There are very few chapters in biology जो ATP में भी बड़े important होते हैं, and this is one of those chapters. So together this chapter is going to minimum give you 9 to 10 marks. No other chapter in basic biology is that much worth it in general balance paper, but this chapter is actually very important. And you know what the good news is? The good news is, mere bachche, Ji beta, you need to write these notes obviously. The good news is that this chapter is so easy that if you just focus in the class and just participate with your teacher along, inshallah you will learn every bit of the thing, every bit of the topic in the class. और फिर straight away अगर आप जाके pass paper करना चाहोगे ना तो आपसे हो जाएगा. Okay, तो last class में I gave the basic intro कि भाई life is a game of chemical. We as a living organism are the most complex chemical composition. हम खुद एक chemical composition है, और ना सिर्फ एक simple chemical composition है, but we are the most complex chemical composition जो nature ने create की है. And अगर हम उस चीज को समझते हैं, categorize करते हैं, तो we can divide the chemical composition or the chemical functioning of the body into two parts: the functioning of the inorganic variety of compounds and the functioning of the organic variety of the compounds. Inorganic variety की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि primarily the major portion is occupied by water in our body, and then there are large number of mineral ions. But why I have put a cross here over here मेरे बच्चे? क्योंकि हमने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में. इनऑर्गेनिक वैरायटी हमने नहीं पढ़नी है. इन दिस चैप्टर पर्टिकुलरली वी आर सपोज्ड टू डिस्कस ओनली द ऑर्गेनिक वैरायटी. व्हाट इज स्पेशल अबाउट द ऑर्गेनिक वैरायटी? दिस इज द वैरायटी व्हिच मेक्स अस द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिक क्या होते हैं मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ऑल्दो यू स्टडी दिस इन केमिस्ट्री इन मच मोर डिटेल, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? आसान लफ्जों में कार्बन के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, वी कॉल देम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है जी बेटा, मैंने आज कैमरा अपना बंद रखा हुआ है बिकॉज आई एम स्वेटिंग अ लॉट. पंखा बंद किया हुआ है मैंने तबीयत खराब होने की वजह से, तो अभी मेरी शक्ल देखने जैसी नहीं है, तो जस्ट बेयर विद माय वॉइस ओनली फॉर टुडे. ठीक है, थैंक यू. तो क्या कह रहा था मैं बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है बेटा? कार्बन के वानिया कार्बन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. एंड एक्चुअली फातिमा एंड एवरीबडी एल्स, आमना, these are the compounds which makes us the most complex group of organisms, and they include primary classes like carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acid, vitamins. And I have given you the layout of the chapter. Okay, in this chapter we are supposed to talk about the carbohydrates, the lipids, the proteins, the nucleic acid, and the vitamins. Although vitamins ka jo topic tha in the previous content before 2021, the vitamin content was in much more detail, but now you are only supposed to talk a very bit of vitamin C and vitamin D. However, these are the 4 topics which would be discussed in a relatively more detailed manner. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड was the topic जो add हुआ था 2021 में. न्यूक्लिक एसिड was never the part of the syllabus before 2021. So in this chapter, everybody please say with me how many topics we are supposed to study. Number 1, number 2, number 3, number 4. 5 topics हम cover करेंगे. That is the layout. It is important to know the layout of every chapter. That helps you a lot when you are attempting for revision, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि इस चैप्टर में क्या क्या करना है. So without any further delay, let's begin with the first discussion, that is carbohydrates. Please everybody make the heading carbohydrates. Carbohydrates. Okay.
फर्स्ट आप अपॉर्चुनिटी मैं आपको देता हूं, आई वॉन्ट जस्ट 5 to 6 रिस्पॉन्सेज, ठीक है, आउट ऑफ 113 स्टूडेंट्स. बेटा कैन यू टेल मी एनीथिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? बिकॉज हमारी सोसाइटी में भी आज जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है, वो कार्ब्स 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 की बात कर रहे होते हैं, दैट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. वो कार्ब 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 कर रहे होते हैं. तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम ऑफ द गुड इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर साइड. जी, न्यू स्टूडेंट्स एंड द ओल्ड स्टूडेंट्स, एनीथिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट, anything about carbohydrate? Okay, okay. They include sugars. Okay, that's provide instant energy. Good, good. Forms of glucose. Okay, okay, okay. Okay, I am getting multiple responses. New students are also requested to participate. Beta, we are not going to judge you whether you are saying it right or wrong, because the participation is something really important. ठीक है, अजान. ओके, गुड हो गया, गुड हो गया. ओके, ब्रेक 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 शाह मना, ब्रेक शाह. ठीक है जी, लेट्स हैव अ गुड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नाउ. बस 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 भाई, ब्रेक लगा लो चैट पे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स एज फार एज डेफिनेशन इज कंसर्न. देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को ना हम कॉमनली वी रेफर देम एज शुगर्स. कार्बोहाइड्रेट्स को हम कॉमनली इंग्लिश में रेफर कर देते हैं एज शुगर्स. दैट इज नॉट द डेफिनेशन. Why we refer carbohydrates as sugars? Because most of the carbohydrates have sweetness in their taste. Let me be very clear in my words. क्या कहा मैंने? Carbohydrates commonly referred as sugars. इसलिए ऐसा किया जाता है कि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट में फैक्टर ऑफ स्वीटनेस होता है. बट रिमेंबर, नॉट ऑल ऑफ देम आर स्वीट. नाउ दैट इज नॉट द डेफिनेशन. द फर्स्ट मिसकंसेप्शन इज दैट बहुत सारे बच्चे जब कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन आता है तो लिखते हैं दीज आर दी सिंपल शुगर्स और दीज आर दी शुगरी कंपाउंड्स. दैट इज नॉट द डेफिनेशन. शुगरी होना, स्वीटनेस होना, उसका एक करेक्टर है, इसका मैंडेटरी फंक्शन नहीं है, और इसीलिए डेफिनेशन भी नहीं है. हाउएवर, हाउ डू वी डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स? बेटा, अब दूसरा डेफिनेशन जो आपको नजर आ रहा है मुझे चैट में, आप इसमें ज्यादातर बच्चों ने कहा है कि दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. मेजॉरिटी जो रिस्पॉन्स आया है वो ये आया है कि दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. बेटा, आई डिसएग्री विद दैट एज वेल. व्हाई? बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट लिपिड्स, they are also compounds of carbon, hydrogen, oxygen. So if you are saying that carbohydrates are compounds of carbon, hydrogen, oxygen, तो lipids भी तो carbon, hydrogen, oxygen के ही compound है. तो we need to have a set of wordings जिससे हम carbohydrate को अलग करें. Now listen to me very carefully. बेटा, which compound is going to be called carbohydrates? Listen to me very carefully. दो definitions आपकी उसमें, दो characteristics जिस compound में present होंगी, that could be recognized as a carbohydrate, or that could be defined as a carbohydrate. Carbohydrates are compounds of carbon, hydrogen and oxygen only. बेटा, इस डेफिनेशन में the word only is very important. बी वेरी क्लियर बेटा. द वर्ड डेफिनेशन, जो डेफिनेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वर्ड, वो वर्ड है ओनली. बिकॉज व्हेन यू जस्ट नॉर्मली डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट, यू जस्ट से कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. व्हेन यू से दैट दीज आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड यू डू नॉट मेंशन द वर्ड ओनली, इट मींस दैट दे मे हैव अदर एलिमेंट्स इन देम एज वेल. ठीक है, बट व्हेन यू से ओनली विद द डेफिनेशन, इट मींस एब्सोल्युटली क्या हो गया, इट इज कंफर्म दैट दीज आर गोइंग टू कंटेन ओनली थ्री एलिमेंट्स, कार्बन, hydrogen and oxygen. But that's not it. This is only the first part of the definition. Compounds of carbon, hydrogen and oxygen only that display, समझना बेटा, that display ratio of 2:1 between hydrogen and oxygen. Guys and girls, what is that? The second part, that display ratio of 2:1 between hydrogen and oxygen. Let me give you examples. For example, if I say C6H12O6, beta, can you see that? Is it a compound of carbon, hydrogen, oxygen? Yes or no? Is it a compound of carbon, hydrogen, or oxygen? Everybody, please respond. Please respond karte jao, beta. Yes. Okay. Now, when you see the ratio between hydrogen and oxygen, what is the ratio, guys and girls? 2:1. भाई टेबल्स आते हैं ना आपको, मैथ्स आती है. रेशियो क्या आएगा? 2:1. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. C5H10O5. यानी रैंडमली बच्चों तुम्हारे सामने कोई कंपाउंड लिखा हुआ आ गया, एग्जाम में पूछ रहा है कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो मेरे बच्चे इट्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और आप किसी भी कंपाउंड के बारे में बता सकोगे. इज इट अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? यस. And then you make the ratio would become
2:1. Let me give you another example. C12H22O11. Guys and girls, bolo beta. Is it a compound of carbon, hydrogen, oxygen? Yes. And the ratio again is 2:1. Let me give you another example. C8H14O2. Okay. Is it a compound of carbon, hydrogen, oxygen? Is it a compound of carbon, hydrogen, oxygen? Yes. But when you do the ratio, what would be the ratio, Mania? Fatima, Amna, Rehab, what would be the ratio? 7:1. So it means ये कुछ भी हो सकता है, but it's not a, बोलो बेटा, it's not a carbohydrate. It's not a carbohydrate. It's not a carbohydrate. Carbohydrates are compounds of carbon, hydrogen, oxygen only, and they show ratio of 2:1 between hydrogen and oxygen. Let me give you one more example. C9 H8O4N2. Okay, what is the ratio between hydrogen and oxygen here? Again, 2:1. But is it a carbohydrate, guys and girls? Is it a carbohydrate, guys and girls? No. Why? Because the first part of definition is not satisfied. That is, it also contains nitrogen. So carbohydrates, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? Carbohydrates are the compounds of carbon, hydrogen, and oxygen only, and they display ratio of 2:1 between hydrogen and oxygen. मेरे बच्चों, दिल खुश कर दो, ये बताओ ये 2:1 कहां पर देखा हुआ है तुमने between hydrogen and oxygen? Can you recall? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 कहां देखा है? Which molecule has that ratio? Which molecule has that ratio? Can you and everybody recall? Water. Water. Okay, मेरे बच्चे अब सुनना, दिमाग में वाव फैक्टर आ जाए तो बताना बेटा. Why carbohydrates are called carbohydrates? They are carbon containing compounds which have water वाला रेशियो. हाइड्रेट का वर्ड किसके लिए आता है? हाइड्रेट का वर्ड किसके लिए आता है? वाटर के लिए आता है. दीज आर कार्बन वाले कंपाउंड विच हैव वाटर वाला रेशियो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स इसीलिए कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्बन वाले कंपाउंड्स विच हैव वाटर वाला रेशियो. बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फातिमा, रेहाब, आमना, आकृति, हलीमा एंड एवरीबॉडी एल्स, वानिया, स्पेशली द न्यू स्टूडेंट्स. ओके, ठीक है बेटा. तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहने का अल्हम्दुलिल्लाह आपको रीजन भी समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड नाउ कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन कैसे करते हैं एग्जांपल से भी समझ में आ गया. आर वी गुड टू गो टिल दिस पॉइंट? आज का लेक्चर थोड़ा सा डेंस होने वाला है, तो इसलिए कोशिश करूंगा मैं तेज जाऊं, तो यू नीड टू जस्ट रिस्पॉन्स. चलिए बेटा, डेफिनेशन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. ओके मेरा बच्चा, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. बेटा, जब हमने ऑर्गेनिक की बात की, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब मैंने यहां हाईलाइट किया, व्हाट आई हैव हाईलाइटेड स्पेसिफिकली, आर दे स्मॉल कंपाउंड्स और बिग, टू बिग कंपाउंड्स? what do we, when the word organic comes, क्या दिमाग में आता है? Are these compounds small compounds or very large compounds? Obviously big compounds. ठीक है ना? तो मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, now chemistry में again we have two words. एक वर्ड होता है पॉलीमर और एक वर्ड होता है मोनोमर. केमिस्ट्री के अंदर whenever we have to describe any large structure, when we have to describe any large structure, for example wall, अगर एक दीवार है, दीवार इज अ लार्ज स्ट्रक्चर, वो किससे बनी होती है? छोटे छोटे ब्रिक्स से बनी होती है. तो बेटा, पॉलीमर इन केमिस्ट्री इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द लार्ज स्ट्रक्चर, एंड मोनोमर इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द स्मॉल स्ट्रक्चर. तो अगर एक दीवार की हम बात करें, वॉल की बात करें, तो वॉल इज अ पॉलीमर. एक वॉल क्या है? पॉलीमर है. एंड इट इज मेड अप ऑफ, बोलो भाई, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ब्रिक्स. तो वो ब्रिक्स क्या होंगी बेटा? मोनोमर होंगी. तो बिल्कुल इसी तरह, एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वे टू बिग और एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वे टू लार्ज, देयरफॉर दे आर कैटेगराइज्ड इन द कैटेगरी ऑफ पॉलीमर्स. किस कैटेगरी में बेटा, किस कैटेगरी में क्लासिफाई होंगे? पॉलीमर्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट्स भी पॉलीमर्स हैं. प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स भी पॉलीमर्स हैं. लिपिड्स क्या हैं? लिपिड्स भी पॉलीमर्स हैं. या इसी तरह न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड भी पॉलीमर है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोबारा समझाता हूं बेटा. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हम एक बेसिक आइडिया लेते हैं जस्ट बाय द नेम, दैट इज कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अ बिग एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. Are you getting my point? So मेरे बच्चे, all of these compounds which we are going to study in this chapter are actually big compounds. So can we refer them all as polymers? Yes or no? Can we refer all those big compounds as polymers? Yes.
That's correct. Now, as the wall was polymer and it was made up of smaller units, so can I say that every large unit is made up of smaller unit? Every large unit is made up of a smaller unit. Every large unit is made up of स्मॉलर यूनिट. भाई लार्ज स्ट्रक्चर रातों रात जिब्राइल रख के थोड़ी चले जाते हैं. एक बिल्डिंग आपने बनाई है, ये थोड़ी होता है कि रात को सोए थे सुबह उठे तो जिन जिन्नात पूरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है एक एक यूनिट के तौर पर. नो, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट. इन द वेरी सेम वे all these large big structures, gigantic structures are made up of smaller units. So carbohydrates के smaller units को क्या कहते हैं? What are the monomers of carbohydrate? आप स्कूल में पढ़ के आ चुके हो. The monomers of carbohydrates are called मोनोसैकेराइड्स. याद है? कार्बोहाइड्रेट जिन स्मॉलर यूनिट से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? मोनोसैकेराइड्स कहते हैं. इसी तरह प्रोटीन जिन स्मॉलर यूनिट से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स. अमाइनो एसिड्स. प्रोटीन जिस मोनोमर से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड. इसी तरह लिपिड्स जिन स्मॉलर यूनिट से बने होते हैं उन्हें क्या कहते थे? फैटी एसिड्स. क्या कहते हैं भाई? फैटी एसिड. इन द वेरी सेम वे, एक मिनट होल्ड करना बच्चों, आई एम गेटिंग अ कॉल. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम सलाम. जी भाई बोले. वालेकुम सलाम. जी बोले. क्लास चल रही है. सीआई ट्यूटरी क्लास हो रही है ना? क्लास. हाँ. हाँ मैं फारिग को कॉल करता हूँ आपको. ठीक है. ओके ओके ओके. थैंक यू. तो मेरे बच्चों क्या बात हो रही है कि मेरे बच्चे ऑल दीज आर, बोलो बेटा, बिग स्ट्रक्चर और स्मॉल स्ट्रक्चर्स. दे आर बिग स्ट्रक्चर्स एंड एवरी बिग स्ट्रक्चर इज रेफर्ड एज पॉलीमर एंड पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, बोलो बेटा, स्मॉलर स्ट्रक्चर कॉल्ड monomers. So carbohydrates are made up of smaller structures called monosaccharides. Proteins are made up of smaller structure called amino acid. Lipids are made up of smaller structure called fatty acid and glycerol. In the very same way, nucleic acids are also made up of smaller structures called nucleotides. तो मेरे बच्चे, अगर मुझे कार्बोहाइड्रेट को पढ़ना है, अगर मुझे जानना है कि दीवार कितनी मजबूत है, तो क्या मुझे जानना पड़ेगा कि ब्लॉक की क्वालिटी क्या है? बोलो भाई, दीवार कैसी है, दीवार की स्ट्रेंथ कैसी है? दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ और कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लॉक. दैट इज व्हाई बिफोर गेटिंग इनटू द डिस्कशन ऑफ मेजर कार्बोहाइड्रेट्स वी हैव टू टॉक अबाउट, बेटा बोलो, मोनोसैकेराइड्स. ठीक है. हमें किसके बारे में बात करनी पड़ेगी? मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करनी पड़ेगी. यस और नो? तो बेटा पहली हेडिंग बनाएंगे मोनोसैकेराइड. गाइस एंड गर्ल्स, पहली हेडिंग बना लेंगे मोनोसैकेराइड्स. पहली हेडिंग आ गई गाइस एंड गर्ल्स, मोनोसैकेराइड्स. तो कैन आई से दिस, प्लीज मेरे साथ साथ याद करते जाना. कैन आई से कि दीज आर the monomers of carbohydrates? Yes or no? Can I see that? Say that these are the monomers of carbohydrates? Yes or no? ऑब्वियसली अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि यही वो स्मॉलर यूनिट्स हैं जो बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं. लेकिन द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट इज हियर कि भाई कितने छोटे हैं. हमने कहा कि भाई ये स्मॉलर, ये मोनोमर्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो कितने, ऑब्वियसली छोटे तो हैं, बट कितने छोटे होंगे कि हम कहेंगे ये मोनोसैकेराइड्स हैं? दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि भाई ये छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बड़े कार्बोहाइड्रेट्स को बनाएंगे. तो भाई कितने छोटे होंगे कि आप कहेंगे कि ये छोटे हैं? तो याद रखें बेटा, दे रेंज फ्रॉम 3 कार्बन टू 7 कार्बन. कहां से कहां तक रेंज होती है बेटा इनकी? दैट इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट नो दिस. दे रेंज फ्रॉम 3 कार्बन टू 7 कार्बन. यानी कितना छोटा स्ट्रक्चर होगा कि हम कहेंगे कि ये मोनो है? या तो उसमें 3 कार्बन होंगे, या 4 कार्बन होंगे, या 5 कार्बन होंगे, या 6 कार्बन होंगे, या 7. लेट मी गिव यू एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एग्जाम्पल्स दी थी. हाउ मेनी कार्बन वी हैड हियर? कितने कार्बन थे बेटा? 6 थे. तो क्या मैं इसे मोनो कह सकता हूं? कैन आई से दिस अ मोनोसैकेराइड? यस. इसमें कितने कार्बन थे? 5. तो क्या ये मोनोसैकेराइड कहला सकता है? यस. बट इसमें देखो कितने कार्बन थे? 12. तो कैन आई से दिस एज अ मोनोसैकेराइड? Obviously no, it's not a monosaccharide. Whatever it is, but it is not a monosaccharide. So are you getting my point? कि बेटा हम कहते हैं these are the monomers of carbohydrates. They range from how many carbon to how many carbon? 3 कार्बन to वरीशा, रेहाब, आमना, क्रिस्टल्स 3 to 7. अब मजे की बात यह है कि इनकी ग्रुपिंग भी बड़ी आसान है. दे आर ग्रुप्ड एज, कैसे ग्रुप करते हैं?
ट्रायोसिस। ट्रायोसिस किसे कहते हैं? जिनमें 3 कार्बन आ रहे हैं, जिनमें 3 कार्बन आ रहे हैं वी कॉल देम ट्रायोसिस। जिनमें 4 कार्बन आ रहे हैं वी कॉल देम टेट्रोसिस। जिनमें 5 कार्बन आ रहे हैं वी कॉल देम, एनी आइडिया, पेंटोसिस। जिनमें 6 कार्बन आ रहे हैं वी कॉल देम, बोलो भाई, हेक्सोसिस। जिनमें 7 कार्बन आ रहे हैं वी कॉल देम हेप्टोसिस। दैट इज अ काउंटिंग जो केमिस्ट्री में चलती है, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। दोबारा समझिएगा मेरे बच्चे, अभी हमने कहा दे रेंज फ्रॉम 3 कार्बन टू 7 कार्बन। तो मोनोसैकेराइड्स में वो कंपाउंड्स आएंगे जिनमें या तो 3 कार्बन होंगे, या 4 कार्बन होंगे, या 5 कार्बन होंगे, या 6 कार्बन होंगे, या 7 कार्बन होंगे। अब जिनमें 3 कार्बन होंगे उनको हम क्या कहेंगे बेटा, बोलो? ट्रायोसिस। जिनमें 4 कार्बन होंगे उनको क्या कहेंगे? टेट्रोसिस। जिनमें 5 कार्बन होंगे उनको क्या कहेंगे? पेंटोसिस। जिनमें 6 कार्बन होंगे उनको क्या कहेंगे? हेक्सोसिस। जिनमें 7 कार्बन होंगे उनको क्या कहेंगे? हेप्टोसिस। जैसे कि फॉर एग्जांपल C6H12O6, कैन आई से दिस हेक्सोस शुगर? क्या मैं इसको हेक्सोसिस कह सकता हूं? बोलो बेटा, क्या मैं इसको हेक्सोसिस कह सकता हूं बेटा? डेफिनेटली आई कैन। ओके, क्या मैं C5H10O5 को, बेटा मुझे बच्चे, क्या मैं इसको हेक्सोसिस कह सकता हूं? कैन आई से हेक्सोसिस टू दिस वन? कैन आई यूज द वर्ड हेक्सोसिस फॉर दिस वन? नो। व्हाट इज इट? व्हाट इज इट? इट इज, वरीशा, व्हाट इज दिस? इट इज पेंटोसिस। ठीक है? ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस एंड हेप्टोसिस। ठीक है जी। तो मोनोसैकेराइड्स क्या हो गए बेटा, साथ साथ याद करते जाना। ये मोनोमर्स है कार्बोहाइड्रेट के, दे रेंज फ्रॉम 3 टू 7। अब 3 वालों को क्या कहेंगे, बोलो? ट्रायोसिस। 4 वालों को टेट्रोसिस, 5 वालों को पेंटोसिस, 6 कार्बन वालों को हेक्सोसिस, 7 कार्बन वालों को हेप्टोसिस। इज दिस क्लियर गाइज एंड गर्ल्स? Now, before I tell you something else, let me change the page. I want to make you understand a very important point जो तुम्हें बार बार रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। देखो, एक अलग से एक बात समझाते हैं आपको, और उसके बाद आई गेट बैक टू द डिस्कशन अगेन। देखो, जब हम किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जब हम किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो एक्चुअली दैट मॉलिक्यूल सेटल्स इन बिटवीन द स्पेसेस। दोबारा समझना, जब हम किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एक्चुअली दैट मॉलिक्यूल सेटल इन बिटवीन द स्पेसेस। ठीक है? अगर कोई कंपाउंड बहुत बड़ा होगा, कोई कंपाउंड बहुत बड़ा होगा, विल दैट कंपाउंड बी एबल टू सेटल इन दिस स्पेसेस बेटा? बोलो, अगर कोई कंपाउंड साइज में बहुत बड़ा होगा तो क्या ये कंपाउंड इस स्पेस में एडजस्ट हो पाएगा? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। ऑब्वियसली नॉट बेटा। द आइडिया इज वेरी सिंपल कि अगर किसी कंपाउंड का साइज बहुत बहुत बड़ा होगा तो वो इस स्पेस में एडजस्ट नहीं हो पाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक कंपाउंड साइज में छोटा होगा तो वो इजीली एडजस्ट हो जाएगा, एंड दैट वुड बी सॉल्युबल टू, यस और नो? वो पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा। इसीलिए टेल मी बेटा, पानी में ज्यादा क्या डिसॉल्व होती है, चीनी या नमक? कि ज्यादा क्या डिसॉल्व होता है? नमक, सॉल्ट डिसॉल्व होता है, या पानी, शुगर डिसॉल्व होती है? ऑब्वियसली सॉल्ट डिसॉल्व होती है। व्हाई? बिकॉज सॉल्ट का जो क्रिस्टल होता है वो छोटा होता है, और जो चीनी का क्रिस्टल होता है वो बड़ा होता है, एंड दैट इज व्हाई यू विल सी कि मोर सॉल्ट गेट डिसॉल्व इन वाटर। यस और नो? तो आइडिया समझ आया बेटा कि जब किसी चीज को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं गाइस एंड गर्ल्स, तो वो असल में जाकर वाटर के स्पेसेस में सेटल होता है। तो अगर उसका साइज छोटा होगा तो वो इजीली सेटल हो जाएगा। तो सॉल्युबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट गाइस एंड गर्ल्स? ओके, नाउ टेल मी, मोनोसैकेराइड्स बड़े हैं या छोटे हैं? आर दे बिग स्ट्रक्चर्स और स्मॉल स्ट्रक्चर्स? Definitely they are small structure. So now can you guys tell me के should they be soluble in water or insoluble? बोलो, अगर ये साइज में छोटे हैं तो वाटर के दरमियान एडजस्ट हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो बेटा दैट इज व्हाई आई वेंट टू द नेक्स्ट पेज। ऑल, बोलो बेटा, बगैर रट्टा लगाए, बिकॉज ये साइज में क्या है? वरीशा, फातिमा, एमल, रिदेश, साइड में छोटे हैं, तो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर, बोलो, सॉल्युबल इन वाटर। सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स पानी में सॉल्युबल होंगे, जिसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि साइज में छोटे हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोमर्स हैं, तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड एंड एडजस्ट इन बिटवीन दी स्पेसेस ऑफ वाटर।
ठीक है, I beg you can use your understandable writing. I think it is, I'm multiple times saying the repeating the statement as well. So kind of Shahid, this is kind of shocking कि when a teacher is writing, मैं लिखते हुए भी बोल रहा होता हूँ कि मैं क्या लिख रहा हूँ, still you are not able to get it. ठीक है, तो that is something you should also improve on to, please. Okay, all monosaccharides are soluble. Is this clear, beta, everybody? Okay. It won't justify my, I won't be able to justify myself as a medical doctor if I just write everything very, very clearly. ठीक है? Okay, back to discussion. Now one more concept. Now one more concept and then we'll get back to it. समझना मेरे बच्चा, बेटा आपने स्कूल में एक केमिकल का नाम यकीनन सुना होगा, दैट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. सुना हुआ है? स्कूल में आपने एक केमिकल का नाम सुना हुआ होगा, दैट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. जिसने नहीं भी सुना हुआ वो परेशान ना हो, जस्ट बिलीव कि देयर इज अ केमिकल सॉल्यूशन जिसको बेनेडिक्ट कहते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. एंड बी फॉर बेनेडिक्ट, बी फॉर ब्लू. वानिया, इट्स अ ब्लू कलर सॉल्यूशन. B for Benedict, B for blue. B for Benedict, B for blue. B for Benedict, B for blue. मिक्स नहीं कर देना मेरे बच्चे. नाउ देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट्स which react with Benedict solution. समझना बेटा कॉन्सेप्ट को, ये दोबारा भी आएगा चैप्टर के एंड पे, बट आई वांट टू मेक इट डायरेक्टली यूजफुल फॉर योर एमसीक्यू प्रैक्टिस जो तुम करोगे इस चैप्टर के एंड पे, तो इसलिए फोकस करो. नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन कॉल्ड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. There are carbohydrates which react with Benedict reagent, and there are carbohydrates which do not react with Benedict reagent. There are carbohydrates which react with Benedict, and there are carbohydrates which do not react with Benedict. So listen to me very carefully. Those who react, those carbohydrates which react with Benedict solution, वो carbohydrates जो Benedict solution से react करते हैं, we call them reducing sugars. हमको क्या कहते हैं बेटा? We call them reducing sugars. दोबारा से, there is a solution called Benedict solution. There are carbohydrates who can actually react with Benedict solution, and those carbohydrates are called reducing sugars. And there are others who would not react, and therefore they are called non-reducing sugars. अब now the question is कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर रिएक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन पे हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो नाउ देयर इज अ ट्रिक. मेरे बच्चे, अंदर से चीखने की आवाजें तो नहीं आएंगी कि रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, बल्कि क्या होगा? यू विल सी अ कलर चेंज. यू विल सी अ कलर चेंज. ट्रैफिक सिग्नल देखा है आप सब लोगों ने? कैन यू जस्ट रिलेट टू द ट्रैफिक सिग्नल? ट्रैफिक सिग्नल में सबसे नीचे लाइन कौन सी होती है? सबसे नीचे लाइन कौन सी होती है बेटा? सबसे नीचे लाइट ग्रीन होती है. ग्रीन के ऊपर कौन सी होती है? येलो होती है. येलो के ऊपर कौन सी होती है? रेड होती है. हमारे ट्रैफिक सिग्नल में वी हैव वन मोर लाइट ऑरेंज, एंड देन फाइनली वी हैव द लाइट ब्रिक रेड. व्हाट सर? जो कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट करेगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से वो कलर चेंज देगा. जो कार्बोहाइड्रेट रिएक्ट करेगा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से वो कलर चेंज देगा फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन to yellow to orange to brick red. Blue to green to yellow to orange to brick red. ये कलर अलग अलग किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा? ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहे हैं. इफ द क्वांटिटी इज टू लेस, द ग्रीन कलर वुड बी ऑब्जर्व. अगर क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होगी तो येलो आ जाएगा, क्वांटिटी और ज्यादा होगी तो ऑरेंज आ जाएगा, और गुड क्वांटिटीज होंगी तो ब्रिक रेड आ जाएगा. प्लीज एवरीबडी, व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, आई नीड एवरीबडी टू फोकस हियर दैट देयर इज अ सॉल्यूशन कॉल्ड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. ठीक है, व्हिच इज ब्लू इन कलर. बी फॉर बेनेडिक्ट, बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेनेडिक्ट, बी फॉर ब्लू. नाउ सर ने क्या कहा कि बेटा देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच रिएक्ट विद बेनेडिक्ट, एंड देयर आर सम कार्बोहाइड्रेट्स जो बेनेडिक्ट से रिएक्शन नहीं करते. Those who react are called, बोलो बेटा, those which react are called reducing sugars. And how are we going to know that are they reacting? अंदर से आवाज आएगी रिएक्शन हो गया, मुबारक हो, मिठाई बांटो. नो, बल्कि आपको कलर चेंज नजर आएगा. तो कलर चेंज कहां से होगा बेटा? बेनेडिक्ट इज ब्लू कलर विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सिग्नल लाइट. ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज, एंड देन ब्रिक रेड. ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड ब्रिक रेड. अब मुझे एक कंसेप्ट समझाना है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. बेटा जब एक केमिकल कंपाउंड छोटा होता है
जब एक केमिकल कंपाउंड छोटा होता है, दिस इज ऑल केमिस्ट्री, आई हैव टू टीच यू दिस केमिस्ट्री ताकि तुम्हें रट्टा ना लगाना पड़े। तो मुझे बताओ, एक कंपाउंड जब छोटा होता है तो उसमें केमिकल बॉन्ड ज्यादा होंगे या कम होंगे? बोलो बेटा। एक कंपाउंड जब छोटा होगा तो उसमें केमिकल बॉन्ड ज्यादा होंगे या कम होंगे गाइस एंड गर्ल्स? एक छोटे कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड ज्यादा होंगे या कम होंगे? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस गाइस। लेस। ऑब्वियसली अगर एक कंपाउंड छोटा है तो उसमें बॉन्ड्स कम होंगे, और जब बॉन्ड्स कम होंगे तो उसको ब्रेक करना आसान होगा वानिया या मुश्किल होगा? उसको ब्रेक करना आसान होगा फातिमा, आकृति, और या मुश्किल होगा? ऑब्वियसली इजी होगा। जब रुकमा, रोहान, रोहान खान, सबीन, मेरे बच्चे, ऑब्वियसली जब एक कंपाउंड छोटा होगा उसमें बॉन्ड कम होंगे, जब बॉन्ड कम होंगे तो उसको तोड़ना आसान होगा, जब उसको तोड़ना आसान होगा तो क्या वो आसानी से रिएक्ट कर जाएगा बेनेडिक्ट से? यस और नो? क्या वो आसानी से रिएक्ट कर जाएगा बेनेडिक्ट से? बेहतरीन हो गया। नाउ गेट बैक टू डिस्कशन। बेटा मोनोसैकेराइड्स बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? मोनोसैकेराइड्स बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? ऑब्वियसली छोटे होते हैं। तो जब छोटे होते हैं तो इनको तोड़ना आसान है। तोड़ना आसान है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बेनेडिक्ट से रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। तो हम क्या कहेंगे मीजान, बोलो? ऑल। अब देखो रट्टे के बगैर याद रहेगा ना। अब आपको याद रहेगा कि मोनोसैकेराइड छोटे थे तो आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। ऑल मोनोसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग? बेटा बोलो, क्या ख्याल है, रिड्यूसिंग होंगे नॉन रिड्यूसिंग होंगे? रिड्यूसिंग होंगे। अब आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बच्चे रट्टा लगा रहे होते हैं ये रिड्यूसिंग है ये नॉन रिड्यूसिंग है। आपको याद रहेगा कि द सर हैज टोल्ड अस कि भाई जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बॉन्ड्स कम होते हैं, वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और जब वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो दे विल रिएक्ट, और अगर वो रिड्यूसिंग शुगर है तो दे विल गिव द कलर चेंज। बोलो बेटा, फ्रॉम बी फॉर बेनेडिक्ट, बी फॉर ब्लू टू, बोलो कलर चेंज क्या होगा? ग्रीन, अरे बोलो भाई, येलो टू, अरे याद कर लो, ऑरेंज टू ब्रेक रेड। यस और नो? ट्रैफिक सिग्नल वाला सीक्वेंस है, बस दरमियान में ऑरेंज लाइट भी आ रही है। तो मेरे बच्चे, ऑल ऑफ देम विल बी रिड्यूसिंग शुगर। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस एंड गर्ल्स मोनोसैकेराइड्स के बारे में? ओके, नाउ इट्स टाइम टू सम talk about some examples. So we are supposed to know three examples from the category of monosaccharides. Number one, the category of monosaccharides, number one is glucose, number two is fructose, and number three is galactose. One word for each one of them. Number one, all three have the same formula, that is C6H12O6. All three have the same formula, and can I refer them as hexoses? Can I refer them as hexoses, guys and girls? Definitely a big yes. Now, one more important point, that glucose is the most abundant monosaccharide. बेटा इस नेचर में, ये सब चीजें एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा इस नेचर में जो सबसे ज्यादा मोनोसैकेराइड है, दैट इज ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज। फ्रक्टोज, just remember that it is the sweetest. मैंने शुरू में बताया था that carbohydrates have sugary taste, so this is the sweetest carbohydrate. जो चीजें भी आपने मीठी चखी हैं, खाई हैं, और जो जितनी ज्यादा मीठी होती हैं उनमें फ्रक्टोज कंटेंट उतना ज्यादा होता है। कैन यू रिकॉल एनी मीठी चीज? कैन यू रिकॉल एनी मीठी चीजें? ऑब्वियसली कैंडीज, यस, और शुगर, और मैंगो फ्रूट्स, ग्रेप्स का सीजन चल रहा है, मिठाई, केक, जितनी चीजें आपने मीठी खाई है, चॉकलेट, क्या बात है, आइसक्रीम, वाह वाह वाह, गरम गरम गुलाब जामुन, चमचम, भाषानी की मिठाइयां, आय हाय हाय हाय, कलाकंद, बर्फी, है जी, केक, चॉकलेट ब्राउनी, ड्राई मिल्क केक, मुल्तानी सोवन हलवा, क्या बात है, रेवाड़ी वालों का सोनल हलवा, वाह वाह वाह, काजू कतली, कुनाफास, अमेजिंग अमेजिंग कुनाफास, वो कोमैल का कंडेंस मिल्क, याद है कोमैल वाला कंडेंस मिल्क आता है बचपन में, बड़े बच्चे शौक से पीते हैं उसको, है जी, कस्टर्ड, वाह 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 वाह, कमाल हो गया, फालूदा, रसमलाई, माशाल्लाह। बायोलॉजी की नॉलेज भले भले जीरो हो, कार्बोहाइड्रेट जब मैं पूछ रहा था तो 10 लोग भी जवाब नहीं दे रहे थे, और अभी मीठे की बात शुरू हुई है तो एक से एक डिश लेकर आ रहे हो, हैं? वाना ईट मैंगो केक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
देखो मेरे लिए तो मुश्किल है कि मैं 123 स्टूडेंट्स के घर पे कुछ मीठा भिजवाऊं, बट आपके लिए बड़ा आसान है कि आप जो है सर के घर पे जरूर मीठा भिजवा सकते हैं। आई विल नेवर रिजेक्ट इट, ठीक है। अगर मेरे घर पर आप भिजवाना चाहेंगे तो आई वुड नेवर एवर रिजेक्ट इट, ठीक है। सर जो आप बोले बस, ठीक है भाई, अब जो आप बोले तो ऐसा करो कुछ, एक तो पाची की चॉकलेट्स भिजवा दो यार, मुझे बहुत दिन हो गए नहीं खाए मैंने। पाची की चॉकलेट्स भिजवा दो मुझे, बड़ा वाला कुछ, ठीक है। तो जो जो भिजवा सकता है भाई, आई वुड डेफिनेटली वेलकम, ठीक है। बच्चों से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे। पाची की चॉकलेट पहले, पहला लिस्ट है पाची की चॉकलेट, ठीक है। पहले जब वो आ जाएगी फिर देखेंगे अगला, ठीक है। ठीक है, एक बड़ा पैकेट होना चाहिए, अच्छा, इससे हल्के में नहीं होना चाहिए। चलो, जब एड्रेस चाहिए हो व्हाट्सएप पे राब्ता कर लेना, सही है। ओके 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 ओके। फहद कह रहे हैं ए स्टार आ जाए, डन है। यही बात पिछले साल वाले बच्चे भी कह रहे थे, कमबख्तों के ए स्टार्स आए हैं उसके बाद भी सिवाय कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू के कोई कोई जो है ना वो इवेंट नहीं हुआ। तो तुम लोग भी टोपी ड्रामे करा दोगे, सैड। आई मीन सऊदी अरेबिया, कोई मसला नहीं इशिता, मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चक्कर लगा लेता हूँ सऊदीया में। साल में एक आध बार चक्कर लगेगा अगर, तो फिर जो है ना वो फिर गुडी बैग तैयार करके रखना है आपने। ओके, चलिए बैक टू डिस्कशन बेटा, बैक टू डिस्कशन। तो बेटा इज दिस क्लियर, दैट्स ऑल अबाउट मोनोसैकेराइड्स। बेटा वन लास्ट टाइम, व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? दीस आर द मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सर ये छोटे हैं? जी हाँ छोटे हैं। कितने छोटे हैं भाई? मिनिमम बोलो बेटा। मिनिमम 3 कार्बन, मैक्सिमम 7 कार्बन, यस और नो। एंड दे आर ग्रुप्ड एज ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, एक्सोसिस, ब्ला ब्ला ब्ला। Are they soluble or insoluble? Beta, how do you remember that? They are small in size and small compounds are easily adjustable in water, so they all are soluble. And lastly, all are reducing sugars or non-reducing sugar. So we know logically now that these are small structures and the bonds are can easily be broken. So they would love to react with Benedict solution and therefore they are reducing sugars. Examples include glucose, fructose, galactose. Are we good to go? Yes or no? Yes or no, guys and girls? Chalo. Now let's talk about the next category. Obviously, the carbohydrates, now the monosaccharides, which were the smaller units, they will start forming more complex carbohydrates. क्या करेंगे भाई? ये ज्यादा बड़े कार्बोहाइड्रेट्स या और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। सो नाउ वी आर सपोज टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड डायसैकेराइड्स, ठीक है। डायसैकेराइड्स के नाम से भी कुछ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है बेटा? डायसैकेराइड का नाम क्या बता रहा है? ओके, व्हेन टू, वेरी गुड, व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स आर combined together। बच्चों हमने दो मोनोसैकेराइड लिखा हुआ है, हमने दो कार्बन नहीं लिखा है, हमने दो मोनोसैकेराइड्स लिखे हैं। प्लीज बी वेरी क्लियर, व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स आर कंबाइंड टुगेदर वाया कंडेंसेशन, वाया कंडेंसेशन अ डाइसैकेराइड इज फॉर्म्ड। क्या कहा हमने? व्हाट इज डाइसैकेराइड? जब मोनोसैकेराइड्स, दो मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होंगे, जब दो मोनोसैकेराइड्स आपस में कंबाइन होंगे। कैसे कंबाइन होंगे बेटा? इस तरह कंबाइन होंगे कि उस रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो। जिस रिएक्शन में वाटर एलिमिनेट हो, वी कॉल दैट कंडेंसेशन रिएक्शन। सो व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स, गाइस एंड गर्ल्स प्लीज मेक दिस clear in your mind that monosaccharides were the smallest units. Now when two monosaccharides are added, when two monosaccharides are combined, as the word is already suggesting that a disaccharide is formed. But what is important, 2 mark की definition आएगी तो बच्चे क्या गलती करते हैं? They simply say कि when two monosaccharides are combined, you have to mention that the process here is condensation. That is कि जब ये combine हो रहे होते हैं, इनके दरमियान जब bond form हो रहे होते हैं, तो उन bond formation में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन रिमूव होकर वाटर बना लेते हैं। तो इन प्रैक्टिकल सिनेरियो व्हेन दीज मोनोसैकेराइड्स आर गेटिंग लिंक्ड विद ईच अदर, two hydrogen and one oxygen are eliminated to form water. So that is why we say that when two monosaccharides are combined via condensation, condensation का मतलब क्या है? A reaction that results in release of water. So when two monosaccharides are combined in such a way that they release molecule of water, तो अब उनके combine होने से एक monosaccharide और दूसरा monosaccharide आपस में क्या हुआ बेटा? Combine हुए, so we get what? A disaccharide. We get a disaccharide. Are you getting my point? अब मुझे बताओ, डायसैकेराइड्स बहुत ज्यादा बड़े कंपाउंड्स होंगे या थोड़े बड़े कंपाउंड्स होंगे?
Are they too big or they are just bigger ones? ऑब्वियसली थोड़े बड़े होंगे, बिकॉज अभी दो ही तो मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हुए ना, ये कोई बहुत बड़े कंपाउंड्स नहीं होंगे। और जब ये बहुत बड़े नहीं है तो व्हाट डू यू थिंक, शुड दे बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? जी बेटा, शुड दे बी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल? बोलो। डेफिनेटली soluble. All of them are soluble in water. Like monosaccharides, ये भी क्या है बेटा, पानी में soluble है. All of them are soluble in water. अच्छा, मेरी तरफ अजान हो रही है, अजान के बाद बात करते हैं. Okay guys, are you with me? Hello, hello, are you all with me? Okay. Okay, just let's just continue. मेरे बच्चे, तो हम क्या बात कर रहे थे? Because disaccharides are bigger ones, but they are not too big, na? Because only two monosaccharides have combined, na? So it means still they are not too big in their size. That is why, are they able to adjust in between the space of water, Varisha? Would they be able to adjust? Definitely they would. And inshallah, that is why we said that all of them are, bolo beta, soluble in water, just like monosaccharides. Okay, what about their structure now? Are they too big? No. So if they, are they going to have too many bonds? Are they going to have too many bonds? No. So will they be able to break down to react with Benedict? What do you think, guys? They be able to react with Benedict? Definitely they would. Yes or no, Varisha? They would be reacting with Benedict. So reducing होंगे या non reducing होंगे बेटा? All of them are reducing sugars, except there's one exception that does not follow the trend. So I'll tell you that exception later on. Beta, please इधर focus करें. Chat में से फिर otherwise Shiza and I have to remove 3 to 4 students, Shiza, Najeem and Khalisa वगैरह को मुझे remove करना पड़ेगा. Please थोड़ा सा इधर focus करें. ठीक है? Okay, what I was about telling you, बेटा बच्चा, क्या कहा हमने? Disaccharides क्या है बेटा? मुझे बताएं, सारे क्लियर है? Disaccharides, when two monosaccharides are combined via condensation, we form a disaccharide or we get a disaccharide. Are they too big in their size? No. So are they going to be soluble or insoluble? So they are, bolo beta, soluble in water. Or are they going to react with Benedict, beta? Are they going to react with Benedict? Definitely yes. So all of them are reducing sugar. There is one exception. I will tell you that later on. Now let's talk about examples. मेरे बच्चे, हमने मोनोसैकेराइड्स में कितनी एग्जांपल डिस्कस की थी? 3. उन्हीं 3 एग्जांपल्स को यूज करेंगे. वरीशा, आर यू विद मी? कौन सी 3 एग्जांपल्स आ गई बेटा? ग्लूकोज. ग्लूकोज को अगर मैं ग्लूकोज के साथ ही कंबाइन कर दूं, ग्लूकोज को अगर मैं ग्लूकोज के साथ ही कंबाइन कर दूं, तो बेटा, इज इट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोनोसैकेराइड? Is it the combination of two monosaccharide? Yes. So beta, I get maltose. I get maltose and water is removed. I get maltose and water is removed. So what is maltose, guys and girls? Maltose is a, बोलो भाई, maltose is a disaccharide. Okay. Next example देखिएगा, वहां पर भी 3 थी, यहां भी 3 है. If I combine glucose with fructose, if I combine glucose with fructose, I get sucrose plus water. And this sucrose is the same sugar जो कॉमन शुगर होती है. ठीक है, सुक्रोज जो आपके घरों में शुगर आप यूज कर रहे हैं, दैट इज सुक्रोज. दैट इज सुक्रोज. ठीक है, दैट इज अनदर डाइसैकेराइड. एंड लास्ट एग्जांपल इज व्हेन आई कंबाइन ग्लूकोज with another monosaccharide which was galactose, then I get lactose plus water. So मेरे बच्चे, आप रिलेट कर सकते हो कि सुक्रोज क्यों बहुत ज्यादा मीठा होता है? Why sucrose has too much sweetness? Because उसमें क्या मौजूद है बेटा? बोलो. It has got fructose in it. And lactose कहाँ सुना हुआ है आपने? लैक्टोज आपने सुना हुआ है मिल्क के अंदर. जब आप दूध पीते हो, जब आप मिल्क पीते हो, तो आपने मुझे बताओ, मिल्क कैसा होता है? Is it bitter or is it sour? No, it has a factor of sweetness in it, and that is due to lactose present in the milk. Lactose present in the milk. So, beta, these are the 3 examples of disaccharides. Now, what is the exception here? The exception here is sucrose. जो तुम्हारे घर में चीनी है,
that has got some extraordinary stability in its structure. So although that all disaccharides are reducing sugars, although के ज्यादातर या तमाम डाइसैकेराइड जो होते हैं वो बेनेडिक्ट से रिएक्ट करते हैं, बट सुक्रोज रिएक्ट नहीं करता, सुक्रोज रिएक्ट नहीं करता, सुक्रोज रिएक्ट नहीं करता. व्हाई एम आई सेइंग दैट अगेन अगेन? ओ लेवल्स में बच्चे एक्सेप्शंस को जहन में ही नहीं रखते, एंड दैट इज व्हाई एग्जामिनर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कंफ्यूज यू. तो मेरा बच्चा, all of them are reducing sugars, exception is sucrose, that is the same sugar which you have in your home. तो sugar जो आप normally consume कर रहे हो, that is sucrose, and it has got some extraordinary stability in its structure. That is why it does not react with Benedict solution. So are we all good to go about disaccharides, guys? Say yes or no. दोबारा से क्या कहा हमने? When two monosaccharides are combined via condensation at disaccharide form, or do two properties that all of them are reducing sugars, all of them are soluble in water and all of them are reducing sugar except sucrose. This is an exception, guys. जब हम कह रहे हैं exception है तो इसका मतलब है ना, it is not following the normal trend. So क्यों exception है? That has a chemical reason behind that, but that is not something you should be knowing at your this level. Just trust me on this, that sucrose had got some extraordinary stability in its structure. That is why it does not prefer to react easily. ठीक है? And on the other hand, these are the three examples. Glucose when combined with glucose, it gets maltose. Glucose when combined with fructose, it gets sucrose. And glucose when combined with galactose, it forms lactose. Are we good to go till this point? Yes or no? I'll be good to go about. Okay, now the very last category, बहुत quickly करेंगे बेटा, and then I'll take questions. The very last category, let's talk about the polysaccharides. Let's talk about the polysaccharides. Okay, guys and girls. Now, what are polysaccharides? Are polysaccharides simple carbohydrates? No, no, no. Are polysaccharides simple carbohydrates? No, no, no. When large number, और लार्ज नंबर का मतलब क्या है? यहां पर लार्ज नंबर का मतलब तीन चार नहीं है बेटा. लार्ज नंबर का मतलब है सेवरल थाउजेंड्स. लार्ज नंबर की जो रेंज है ना, वो सेवरल थाउजेंड्स है. व्हेन लार्ज नंबर ऑफ monosaccharides are combined via, बोलो, via condensation, a polysaccharide is formed. समझना बेटा कि पॉलीसैकेराइड कोई छोटे स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि क्या है बेटा? जब हजारों मोनोसैकेराइड्स आपस में क्या होंगे बेटा? बोलो, कंबाइन होंगे, तो फिर बनेगा पॉलीसैकेराइड. यानी क्या मैं कह सकता हूं कि these are the most complex category of carbohydrates? Yes or no? These are the most complex category of कार्बोहाइड्रेट्स. अब मुझे बताओ, जब ये इतने बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, अब देखो रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने बड़े स्ट्रक्चर होंगे तो क्या ये पानी में डिसॉल्व होंगे? बच्चों बोलो, क्या ये पानी में डिसॉल्व होंगे? बेटा बोलो. ऑल ऑफ देम आर. सबको समझ में आ रहा है? जब ये इतने बड़े स्ट्रक्चर्स हैं तो क्या ये पानी में डिसॉल्व होंगे? नहीं होंगे. शिजा, नहीं होंगे. ऑल ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शिजा, वानिया, फहद, फातिमा, अरीशा, निहाल, ऑब्वियसली डिसॉल्व नहीं होंगे. एंड जब ये इतने बड़े स्ट्रक्चर्स हैं तो इनमें केमिकल बॉन्ड ज्यादा होंगे या कम होंगे बेटा? ज्यादा होंगे या कम होंगे? बहुत ज्यादा होंगे. तो उनको तोड़ना आसान होगा या मुश्किल होने वाला है? बहुत मुश्किल होने वाला है. तो क्या वो बेनेडिक्ट को मुंह लगाएंगे? बेनेडिक्ट से रिएक्ट करेंगे? डेफिनेटली नहीं करेंगे. वेरी गुड, अब याद रहेगा. सो ऑल ऑफ देम आर, बोलो बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. ऑल ऑफ देम आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स. ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, यानी बेनेडिक्ट से कोई भी रिएक्शन नहीं करता. अब इसको रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी. गुड हो गया मेरे बच्चे. अब इसमें भी हमें तीन एग्जांपल ध्यान में रखनी है. वो जो फेमस एग्जांपल है, नंबर वन, एग्जांपल ऑफ स्टार्च. नंबर टू, एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोजन. एंड नंबर थ्री, एग्जांपल ऑफ सेल्यूलोज. नाम सुना भाई जी? स्टार्च कहां सुना हुआ है आपने? स्टार्च कहां सुना हुआ है आपने बेटा?
Starch is a reserve food in plant body. Yes or no? Starch क्या होता है बेटा? Reserve food होता है in plants. और कहाँ स्टोर होता है? प्लांट अपना फूड कहाँ रिजर्व करता है बेटा? स्टोर्ड इन रूट्स. आप पोटैटो खाते हो ना, कहां से निकालते हो पोटैटो? रूट से निकालते हो. तो स्टोर्ड इन रूट्स. प्लांट अपने अच्छे वक्तों में स्टार्च फॉर्म करता है एज अ रिजर्व फूड. और इसका काम क्या है? ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी. जब जरूरत पड़ेगी, भाई रिजर्व हम क्यों करते हैं? कि जब जरूरत पड़े तो काम आ जाए. तो स्टार्च ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी. तो स्टार्च इज अ रिजर्व फूड इन प्लांट. रिजर्व फूड का मतलब क्या है फहद? दैट्स वेरी सिंपल, कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस से फूड बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है, तो दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज व्हिच द प्लांट हैज मेड, वो उसे स्टोर करेगा, एक्सेस ग्लूकोज को. दैट इज अ रिजर्व फूड. जैसे हम भी करते हैं. जैसे ग्लाइकोजन क्या है बेटा? ग्लाइकोजन हमारा रिजर्व फूड होता है. यस और नो? जब हम लोग खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, एंड वी टेक एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो क्या होता है कि जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है वो बॉडी ब्लड में रहने देती है, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज आल्सो स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. कहां पर स्टोर होता है बेटा ग्लाइकोजन? हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन कहां स्टोर होता है? इट इज स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स. लिवर एंड, बोलो बेटा, कहां स्टोर होता है? लिवर और मसल्स के अंदर स्टोर होता है. ठीक है जी. और इसका काम क्या होगा बेटा? रिजर्व फूड है तो ये भी क्या करेगा? प्रोवाइड एनर्जी व्हेन नीडेड. क्या ख्याल है? जब हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी हासिल करेंगे. तो क्या स्टार्च का और ग्लाइकोजन का फंक्शन सेम हुआ? यस और नो? बोथ आर गोइंग टू गिव अस एनर्जी. बोथ आर गोइंग टू गिव एनर्जी. दोनों रिजर्व फूड है. कैन यू सी द कंपैरिजन? दोनों क्या है? रिजर्व फूड है. इज दिस क्लियर? हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट सेलुलोज, तो सेलुलोज रिजर्व फूड नहीं होता, रादर इट इज अ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट. स्ट्रक्चरल क्यों है? बिकॉज वी ऑल नो दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक, बोलो बेटा, इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक सेल वॉल. ठीक है? दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट. वी हैव स्टडीड इट ना. यस और नो? कि सेल वॉल क्या करती है? प्लांट को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, कोलैप्स से रोकती है. तो मेरे बच्चे, अगर आप थोड़ा सा देखें, अगर आप थोड़ा सा देखें तो बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको कि दीज आर द थ्री एग्जांपल्स हियर. दे आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स. इन दो में कॉमनैलिटी क्या है? बोथ आर रिजर्व फूड. ये क्या है? रिजर्व फूड नहीं है, इट्स अ स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट. विल सेलुलोज ब्रेक डाउन टू गिव एनर्जी? बोलो बेटा, विल सेलुलोज ब्रेक डाउन टू गिव एनर्जी? नो. सेलुलोज का काम ये नहीं है. बल्कि आप सोचो सेलुलोज कितना मजबूत होता है कि जब अम्मी घर में खाना पकाती हैं तो वो जो हरा धनिया है, कोरिएंडर या मिंट के जो लीव्स वो डालती हैं, पूरा खाना पक जाता है, लेकिन वो लीव वहां मौजूद होता है या नहीं होता? वो पूरा एक पुदीने का पत्ता मौजूद रहता है, बिकॉज दैट इज कंटेनिंग सेल्यूलोज. तो सेल्यूलोज इतना इतना ज्यादा स्ट्रक्चरल होता है कि इट इज नॉट गोइंग टू ब्रेक डाउन इजीली. सो आप देखते हो कि इट इज नॉट देयर टू प्रोवाइड एनर्जी, रादर इट इज फॉर द स्ट्रक्चरल सपोर्ट. However, glycogen and starch are the forms of carbohydrate which break down to provide energy. Are we good to go, guys and girls, about this polysaccharide? Yes or no? अल्हम्दुलिल्लाह. दैट्स द एंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बेटा. अब जिनको क्वेश्चंस पूछने हैं वो हैंड रेस कर लें. बाकी लोग क्लास लीव कर सकते हैं इफ यू वांट टू लीव. एंड दोज हु आर टेकिंग फर्स्ट क्लास टुडे, डू गिव मी द आइडिया दैट हाउ डिड that class went and did you get anything out of this?